Hallo, guten Abend. Can you hear me, Rahul? Can you see the screen? Yeah, okay, very good. Um, so हमने लास्ट लेक्चर में वो जो एक पिक्चर था, आपको जो याद आया था कि थर्ड लेक्चर में जो एक पोएम हमने पढ़ी थी, आइन बानहॉफ, उसके ऊपर के थोड़े से एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, राइट? तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये एक्सरसाइज मैंने बोला था कि इफ यू कैन डू इट एट होम एज अ होमवर्क। तो ये किया है आपने, ये वाला? Negation, yeah, okay. So can you please read those negation sentences? Uh, Nein ist Arbeiter nicht. Hmm. Then nein, ich komme nicht. Seven. Nein, sie ist nicht da. Then Hmm. nein, uh, nein, sie wohnen nicht in Berlin. Warum wohne? Sie Uh, won't. okay. So, The Z is er Z S wala Z. She. So ich wohne, du wohnst, er sie es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. So sie wohnt nicht in Berlin. sie wohnt nicht in Berlin. Yes. Ma'am, can we change want to leave? She stays or lives. Yes, okay. जैसे इंग्लिश में हम लोग लीव और स्टे दोनों यूज करते हैं, यू कैन यूज। So, ma'am, both are same. यस, Okay. like stay and leave the same way we use in English. We can use wohne is as to stay, lebt is to leave. Okay. हाँ, Sie ist glücklich. Nein, sie ist nicht glücklich. richtig? Then, nein, er träumt nicht. हाँ, Then, nein, er kommt nicht bald. sehr gut. Nein, ich wohne nicht in Hamburg. Nein, er wohnt nicht in Hamburg. जहाँ पे दू है Uh, ना, सिर्फ वहां पे आपको इश करना है। जहाँ पे जी और एर है, वी आर एनीवे टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन। सो आंसर में भी थर्ड पर्सन ही। नाइन, एर वॉन्ट निस्ट इन हाम्बुर्ग। uh, ओके। ma'am, can you give me 1 minute, please? यस यस, श्योर।
Yes. Have you completed? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So can we move on to next slide? Yes, ma'am. Yes. Um, do you remember these things? हमने ये पढ़ा था. Ich, mein, du, dein, er, sein, sie, ihr, es, sein, wir, unser, ihr, euer, sie, ihr, groß, sie mit groß S, ihr. ये याद है इसका मीनिंग क्या था? इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? याद है ये माइन, दाइन, जाइन, ईयर सेंटेंस में. और ये मतलब मास्कुलिन और फेमिनिन है, तो मास्कुलिन जो है दैट इज यूज्ड अगेन विथ दास के साथ भी वही सेम यूज किया जाता है, और फेमिनिन के साथ बस सब सबके आगे वर्ड्स के आगे एक एक ए लगेगा. दैट्स इट. सो एक मिनट. एक्सरसाइज है इन विच यू हैव टू राइट. या माइन oder meine, dein oder deine. So based on जो भी दिया है, just you have to complete the sentences. So we will uh, read it quickly. So the first you have to use ish. तो मतलब तो इसके लिए हमें यूज करना है फिर माइन oder meine. So from because bloomer है, blue was bedeutet bloomer, blumen. Flower. Yes. So Flower. meine Blume. Yeah, correct. Richtig. So here what we have used is minor bloomer. Then next do. Do के लिए हम लोग यूज करते हैं dein oder deine. So dein Auto. Yeah. अब similarly you have to do for the next sentence. So ish is there. So what will you do with dash und Autos? What will be the answer here? यहाँ पे ना नहीं, ish you have to use ish. Third sentence say. Yeah. Mine oder meine, meine. Minor autos, because autos is again plural, so minor किया है. Okay. Hello Arnav. We get is. Can you hear me Arnav? Yeah. Okay. Good. तो हम लोग जो माइन दाइन ऐसा हमने किया था ना, उसका रिवीजन कर रहे हैं. आई थिंक आप ये स्लाइड के बाद ज्वाइन हुए हो. तो ये स्लाइड है जिसमें हम लोग इश के लिए मतलब मेरा, माइन, ये जो हम इंग्लिश वाले यूज करते हैं यूर, माइन, इसके लिए हमने ये सारे वर्ड्स किए थे पहले. माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उन्जर. याद है ये सारे वर्ड्स आपको? या. तो उसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं. सो फर्स्ट वी आर फोकसिंग ऑन माइन und दाइन. राइट. तो अगर मास्कुलिन है देन यू हैव टू यूज माइन oder दाइन. इफ फेमिनिन है देन यू हैव टू यूज माइनर oder दाइनर. राइट. तो यहाँ पे क्लू के लिए हमें वर्ड दिया गया है, वेदर यू वांट टू यूज इश और यू वांट टू यूज डू. सो उस हिसाब से हमें सेंटेंस को चेंज करना है, मतलब लिखना है वहां पे कि फॉर एग्जाम्पल डे में अभी डू है तो यू हैव टू आइदर यूज दाइन और दाइन. तो क्या आएगा यहाँ पे? डे का आंसर क्या होगा? Was bedeutet Zone? Ein Moment. A day. This one.
Anyone can answer. Rahul, Arnav, both of you can answer. Sun, correct. Rishtish. So यहाँ पे आंसर क्या आएगा देन? माइन और दाइन. फर्स्ट तो वहां पे दू दिया है, सो दू का कौन सा आएगा? दाइन. So either we are going to use दाइन or दाइना. What will be correct here? In this sentence, in this question, Arnav. Day. दाइना ज्योना. Rishtish. वारुम दाइना. दाइना क्यों यूज करेंगे हम लोग? दाइन क्यों नहीं यूज करेंगे? बिकॉज इफ इट इज नुअर जोन देन दाइन हो जाता, राइट? ओनली सिंगुलर हो जाता फिर वो जोन के लिए. और ज्योना हो रहा है तो प्लूरल हो रहा है, इसलिए दाइना यूज कर रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट सेंटेंस. ई. ई का कैसा आंसर आएगा? यू कैन राइट योर आंसर. माइनर. ओके. अर्णव, योर आंसर. इज इट माइन और माइनर? Minor is Trishtish because minor. Was bedeutet Tochter? Daughter. And the article for Tochter is the. That's why here it will be दी है, फेमिनिन है, इसलिए माइनर टॉक्टर. और अगर प्लूरल होता तो प्लूरल फॉर्म क्या होता है टॉक्टर का? ट्योक्टर. ओ उमलाउट. या सो दाइनर टॉक्टर, माइनर टॉक्टर वहां पे भी सेम ही रहता. नेक्स्ट. बेबी. नेक्स्ट सेंटेंस फॉर एफ. Mine baby. Rishtish. The next. Correct. Mine. The next. Gay. Dine order dine. Rahul, you have written dine. Arnav, is your answer same? Dine order dine. Dine. Yeah. Varum dine. Their zone. Their masculine. Therefore, dine zone. The next. Frau. Deine Frau. Die Frau. That's why deine Frau. Sehr gut. The next. Kind. Deine Kind. Warum deine? Here it's ish. इश लिखा है ब्रैकेट में. सो किंड. माइन. या रिशिश. माइन किंड. वारुम माइन बिकॉज दास किंड. दैट्स व्हाई दास है तो मस्कुलिन मतलब न्यूट्रल है, तो उसको हम लोग फिर मस्कुलिन में कंसिडर करके माइन लिखेंगे. नेक्स्ट. किंडर. माइनर बिकॉज इट इज प्लूरल. नेक्स्ट. ट्योक्टर. देखो वो डॉक्टर का ही प्लूरल उधर ही पूछा है. डॉक्टर. दू तो दाइनर डॉक्टर, जैसे हमारा पहले आया था सिमिलरली दाइनर. या sehr gut, richtig. Okay, so this was all about mine, minor order, दाइन, दाइनर. वैसे सिमिलरली हमें
और भी वर्ड्स करने हैं, जैसे जो ये स्लाइड में हमने देखा था कि एयर के लिए जाइन आएगा, सिमिलरली अगर दी वाला कुछ वर्ड है तो जाइन आएगा, जी के लिए ईयर आएगा, फिर प्लूरल वाले जी के लिए भी ईयर ही रहेगा, और फॉर्मल जो होता है जी उसके लिए भी ईयर रहेगा, बट उसके लिए फिर हमें कैपिटल आई के साथ यूज करना है वो ईयर। ओके, अब ये सेंटेंसेस को हम थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं ये एक्सरसाइज के साथ। तो यू हैव टू यूज ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, आइदर माइन माइनर, oder dein deine, sein seine, ihr ihre oder ihr ihre, जैसा भी वहां पे सेंटेंस जो 4 लाइंस दिए गए हैं जो हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा वहां पे सही वर्ड जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब पहला है देखो, इस्ट दास ईयर आउटो हेरमोन, अब अभी ईयर यहाँ पे दिया नहीं है ऐसा इमेजिन कर लो, तो हम कैसे ईयर ढूंढ पाएंगे, तो हेरमोन है, राइट। अब हेर किसके लिए यूज किया जाता है, हेर उंड फ्राउ, एज अ फॉर्मल, राइट, फॉर्मल फॉर्म में हम लोग ये यूज करेंगे, तो इसलिए वहां पे जैसे ये वाला जो लास्ट वाला है पोलाइट फॉर्म, इसमें हम लोग ये वाला जी के साथ ये ईयर आता है, राइट, इसलिए यहाँ पे हमने ईयर डाला है, ओ सॉरी, यहाँ पे, राइट। ये समझ में आया, यहाँ पे कैपिटल आई के साथ वाला ईयर क्यों डाला है, इस्टदास ईयर आउटो हेरमोन, यस राहुल। मैम हेयर मीन्स हर। यूअर, ओके हाँ, तो यूअर मैम हमें बट पूछना है, हाँ बोलो ना। मैम तो यूर है तो यहाँ पे पोलाइट फॉर्म जी का है ये ईयर। हाँ, तो पोलाइट फॉर्म जो जी है ना, वो ये जी जो मिड कैपिटल एस वाला जो जी होता है उसका मतलब भी यू ही होता है, शी वाला जी नहीं है ये शी वाला जी है। एक मिनट, है ये वाला दिख रहा है ना कर्सर के साथ, हाँ हाँ, तो ये एरजीएस वाला जो जी है ना उसका मतलब शी होता है, और ये जो है ना इसका मतलब यू होता है, तो इसलिए यूअर, यू के लिए हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, या तो डू अगर इनफॉर्मल है, मतलब अगर हम दोनों बात कर रहे हैं तो हम लोग डू यूज कर सकते हैं, अगर हम किसी सीनियर पर्सन के साथ बात कर रहे हैं तो पोलाइट फॉर्म के लिए हम लोग जी यूज करेंगे। तो इसलिए अगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ तो मैं या तो दाइन यूज कर सकती हूँ, फिर यहाँ पे इस्ट दास दाइन आउटो, ओके, सेम गोज विथ मी। बट अगर हम किसी और इंसान से पूछ रहे हैं जो हमारे लिए नया है, अब जैसे यहाँ पे हेर का यूज किया है, हेर इज यूजुअली, हेर का मतलब होता है मिस्टर, तो हम लोग किसी को ऐसे बोलते हैं जब हम पोलाइट फॉर्म में या तो फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, तो फॉर्मल वे के लिए हम लोग ये वाला जी यूज करेंगे, तो ये जी का फिर यू करके इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो ईयर जो है ना वो कैपिटल वाला ईयर आया है, कैपिटल आई वाला। अगर मैं यहाँ पे शी के रेफरेंस में बात करने जाती ईयर का, ये थोड़ा सा ना पार्ट कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग मतलब थोड़ा डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, जी जी दोनों में आ रहा है, एक जी शी के तरफ से आता है और एक जी यू के लिए आता है। तो अब इसमें हिंट बस यही लेना है कि हेरमोन करके लिखा है, हेरमोन की जगह पे अगर मैं फ्राउ क्लाउडिया बोलती, तो फ्राउ भी हम लोग किसी के लिए फॉर्मल वे में बात करने के लिए यूज करते हैं, तो उसका मतलब है हम लोग वो पर्टिकुलर पर्सन को फॉर्मली या फिर रिस्पेक्टफुली बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर जो कैपिटल आई वाला ईयर है वो यूज करना है, या तो सेकंड सेंटेंस में यू के लिए हम लोग कैपिटल एस वाला जी यूज करेंगे, ऐसा उसका मीनिंग हो जाएगा। आया समझ में, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा ये वाला चीज। यस मैम। हाँ, तो इसलिए इस्ट दस ईयर आउटो हेरमोन, अगर यहाँ पे सिंपली ऐसा होता कि इस्ट दस डैश डैश आउटो मोन हेर नहीं लिखा है, ओके, तो हमें नहीं पता चलता नाउ वेदर वी हैव टू यूज दाइन और ईयर, तो यहाँ पे दाइन भी सही रहता एंड ईयर भी सही रहता, अगर हेर इतना वर्ड में मिटा देती हूँ तो फिर वो कॉन्वर्सेशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है ये हमें एक सेंटेंस देख के पता नहीं चलेगा, राइट, सिर्फ मोन लिखा है वहां पे, तो इन दैट केस दाइन इज ऑल्सो रिस्टिश, ईयर इज ऑल्सो रिस्टिश। इज इट क्लियर अर्णव, तुम्हें भी पता चला अभी जो डिस्कशन किया हमने? या ओके, सो ये यहाँ पे ये वाला चार्ट में से मैं बता देती हूँ अभी,
ये जो ईयर है, कर्सर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, ये जो ईयर है दैट इज फॉर हर। इंग्लिश के साथ कंपेयर करने जाते हैं इसमें। जी इज सॉरी, जी इज शी और ईयर इज हर। ओके, देन नेक्स्ट ये वाला जो है इसका मतलब होता है यू, बट इन फॉर्मल वे। और इसके लिए जो ईयर लगेगा दैट विल बी यूर इन फॉर्मल वे। अगेन एक मिनट, यूर इन फॉर्मल वे। ठीक है, फिर और एक ईयर होता है जो यहां पे दिया है, तो वो कैसा है इंग्लिश के हिसाब से देखने जाओ। अब ये इश डू मतलब आई यू, एरजीएस मतलब ही शी इट, फिर वियर मतलब हम सब लोग, हम सब के लिए वियर यूज किया जाता है, वी के लिए। एंड ईयर इज यहाँ का जो ईयर है ये वाला जो पर्सनल प्रोनाउन में आता है, दैट इज फॉर यू टू पीपल। ऐसा मैं अगर बोल रही हूँ कि आप दो लोग या एक से ज्यादा सामने वाले लोग होंगे, तो फिर हम लोग जो ईयर यूज करेंगे दैट विल बी दिस ईयर। अब पता चला 3 ईयर हम लोग देख रहे हैं अभी के लिए। तो वो 3 ईयर में मेन ये है कि ये जिसका मीनिंग होगा हर, जो जी के साथ आ जाएगा। फिर ये ईयर जिसका मतलब होता है यू, जो इंग्लिश वाला सेकेंड यू यूज करते हैं, देखो हम आई वी यू यू, तो उसमें जब एक से ज्यादा पर्सन होने पे हम लोग जो यूज करते हैं ना यू, उसके लिए ये वाला ईयर है एज अ पर्सनल प्रोनाउन। एंड देन द नेक्स्ट वन इज दिस विच इज विथ कैपिटल आई, तो ये है यूअर के लिए बट इन अ फॉर्मल वे। अब आया समझ में ये जो ईयर है ये? यस राहुल। मैम वो जो प्लूरल फॉर्म में जी है और जो सिंगुलर फॉर्म में जी है, दोनों में फिर क्या डिफरेंस हुआ? नहीं नहीं, उसका कुछ नहीं है। वो जो ये वाला जो जी है ना, ये वाला जी मेनी पीपल के लिए है, अच्छा। दे के लिए, दे वाला, इंग्लिश वाला दे। हम लोग जब कोई भी कॉन्जुगेशन वर्ब करते हैं ना, तो एक एक मिनट है दिखा देती हूँ। ये देखो, कोई भी वर्ब कॉन्जुगेट करने जाते हैं तो इस हिसाब से कॉन्जुगेट करने जाते हैं। इश डू एरजी एस वियर ईयर जी जी। तो ये जी जो होता है वो मेनी पीपल के लिए, दे के लिए वाला जी होता है। और ये जो होता है, तो यहाँ पे और एक जो ईयर आ जाएगा ना। अब देखो, ये सारी चीजें ऐसी है जब हम सेंटेंस में यूज करने जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हम कौन से रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड शायद सेम ही आ जाएगा वहां पे बट द रेफरेंस विल चेंज। कि या तो हम लोग बहुत सारे देयर के लिए यूज कर रहे हैं, THEIR देयर, जो पॉजेसिव प्रोनाउन है एक, इस हिसाब से ईयर यूज कर रहे हैं। हर के लिए यूज कर रहे हैं, हर के लिए भी ईयर ही वर्ड यूज करेंगे हम लोग। तो क्या वो है, तो अगर किसी एक महिला के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके रेफरेंस में वो जो हर आएगा उसका रेफरेंस ईयर होगा। और फिर अगर सेम ईयर हम लोग यूज करेंगे इफ वी वांट टू से देयर। और कैपिटल आई वाला तो पूरा अलग ही किस्सा है, वो बस डू के लिए एक फॉर्मल एक्स्ट्रा चीज ऐड की गई है। आगे अब ये क्लियर हो गया यहाँ तक। जब हम सेंटेंस में यस। जाएंगे ना तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए थोड़ा समझ में आ गया। अर्नव तुम्हें भी क्लियर हो गया जो ईयर का डिफरेंस तुम्हें चाहिए था? बहुत सारे ईयर दिख रहे हैं हमें इसमें, हर एक का अपना अपना मीनिंग है, वो सेंटेंस के हिसाब से चेंज होता जाएगा। यस अर्नव, हो गया है क्लियर या एनी डाउट? या वेरी गुड। सो नाउ नेक्स्ट, हाँ, तो अब हम ये एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इस्ट दास ईयर आउटो हेरमोन। अब हेरमोन इज गोइंग टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 9 दास इस्ट निस्ट माइन आउटो। तो अब यहाँ पे हेरमोन खुद के लिए बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए माइन आउटो आ गया। दास इस्ट दास आउटो फॉन फ्राउ नॉल, मतलब फ्राउ नॉल का आउटो है ऐसा बोल रहे हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पे आया ओह दास इस्ट ईयर आउटो। अब ये जो ईयर आ गया है ना, ये ईयर किस चीज के लिए है? फ्राउ नॉल के लिए। ओके, सो इधर वी कैन यूज हियर हर आउटो, ऐसा करके वो एक्सप्लेनेशन आया है। या तो यू कैन यूज हियर ऑल्सो, ये जो कैपिटल आई 4 वाला है ना,
वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फ्राउ यूज किया है वर्ड यहाँ पे इसलिए। सो बोथ विल बी करेक्ट हियर। ये ईयर के टाइम पे ये स्मॉल आई एच आर भी आ सकता है, कैपिटल आई एच आर भी आ सकता है। अब पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये होगा, इज दस ईयर आउटो हेरमोन, इज इट योर, इज दिस योर कार हेर अमोन, नो दैट इज नॉट माई कार, दैट इज फ्राउ नॉल्स कार, ऐसा उसने बोला है। फिर ओ दैट इज हर कार। ओके, तो यहाँ पे जो पॉजेसिव प्रोनाउंस आए हैं वो ये एक ईयर है, ये एक माइन है, और ये एक ईयर है। क्लियर? ये पैराग्राफ क्लियर हो गया? या वेरी गुड। सेकंड, अब देखो क्लाउस, अब यहाँ पे हेर क्लाउस नहीं यूज किया है, सिर्फ क्लाउस यूज किया है। सो क्लाउस इज समथिंग, समवन हम लोग जिससे familiar है, राइट? तो इसलिए यहाँ पे अब जो इनफॉर्मल वाला दू है ना, वो हमें दिमाग में रखना है। क्लाउस जिंड दास दाइनर किंडर, सो दाइनर किंडर क्योंकि प्लूरल है। नेक्स्ट इज द आंसर, प्लीज आपकी तरफ से आंसर आ जाने दीजिए कि कौन सा आ सकता है। 9 दास जिंड निश्ट, यहाँ पे क्या आएगा? माइनर। या अर्णव, यहाँ पे अब दाइना नहीं आएगा, यहाँ पे माइनर आएगा। दास जिंड निश्ट माइनर किंडर। अब हम लोग क्लाउस के हिसाब से आंसर कर रहे, राइट? हमने दू को किया है। यस, मैम, हाउ विल वी गेट टू नो दैट कि डाइन वहां पे आएगा 10 के बाद, फर्स्ट यहाँ सेंटेंस? यहाँ पे ना डाइना क्यों आ रहा है, तो वही मैं बोली हाँ। कि या तो अब देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्लाउस को छोड़ दो, सब पहला छोड़ दो। जिंड दास डैश किंडर। अब हम कोई कोई भी इंसान ऐसा नहीं पूछेगा कि आर दीज माई किंडर, तो यहाँ पे मायने तो नहीं आएगा। या तो सामने वाले को डायरेक्टली सवाल पूछा जा रहा है, सामने कोई बंदा है, क्लाउस लिखा है मतलब सामने कोई बंदा है, उससे सवाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे आइदर दाइना आ सकता है या तो ईयर आ सकता है। ईयर मतलब ये वाला ईयर, हाँ, कैपिटल आई के साथ आने वाला। तो अब जैसे अगर यहाँ पे क्लाउस की जगह में हेयर क्लाउस ऐड कर देती ना, मतलब मिस्टर क्लाउस, तो आई डोंट नो मिस्टर क्लाउस, या फिर वो मुझसे बड़े हैं, मैं रिस्पेक्टफुली बात करना चाहती हूँ। सो इन दैट केस हेयर क्लाउस जिंड दास ईयर किंडर, ऐसा हो जाता। अब यहाँ पे सिर्फ क्लाउस यूज किया है। ओके, तो मुझे पूछना है कि क्या ये आपके बच्चे हैं, तो इसलिए जिंड दास दाइनर किंडर। अब यहाँ पे इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, जाइन ये वाला, हाँ, ही शी इट का जो होता है, हिज हर और देयर, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली एक पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, क्लाउस के साथ। ये सेंटेंस से क्लियर हो रहा है, पहले ही क्लाउस यूज किया है या हेर क्लाउस यूज करेंगे, तो इतना तो पता चल जाता है कि हम लोग आमने सामने बात कर रहे हैं। तो अगर आमने सामने बात कर रहे हैं तो जिंड दास आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हेर यूज करेंगे तो ईयर आएगा, हेर नहीं यूज किया है तो दाइना आएगा। इट इज नाउ अपॉन अप टू यू कि यहाँ पे क्लाउस लिख के भी अगर आप यहाँ पे ईयर किंडर लिखना चाहते हो, ये वाला ईयर यूज करके उसका फेमिनिन ईयर, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, आपको कोई गलत नहीं देगा, क्योंकि आप बस फॉर्मल यूज वाला यूआर यूज कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट दाइन क्योंकि क्लाउस यूज किया है, इसलिए दाइना करना कभी भी अच्छी बात है, ऐसा है। दाइना और ईयर कोई भी आ सकता है। सिमिलरली ऊपर भी हम लोग दाइन आउटो यूज कर सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पे हेयर लिखा है, तो वी आर टॉकिंग विथ समवन हु इज अनफेमिलियर, और वी आर गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, फॉर दैट वी आर यूजिंग हियर ईयर का वर्ड, ईयर वाला यूर। और यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं दाइना वाला यूर। एनीथिंग कैन बी यूज। हो गया, यही डाउट था ना? यस। हाँ, तो अब नेक्स्ट सेंटेंस में 9 das sind nicht meine, अब जैसे सामने वाला हमें आंसर कर रहा है इसलिए माइनर किंडर, das sind die Kinder von Uhr। ओके, अब ये उव के किंडर बच्चे हैं, तो इसलिए das sind die Kinder von Uhr, इसका मतलब ओ das sind। अब यहाँ पे क्या आएगा? उव, ऐसा इमेजिन कर लो कि उव इज फीमेल। नहीं, अब जैसे अब देखो ये कैसा हो रहा है कि क्लाउस और मेरे बीच में बात हो रही है। मैंने क्लाउस को डायरेक्टली पूछा कि ये
sind das deine Kinder करके. Now Klaus is answering me कि जो बच्चे हैं वो उवा के हैं. उवा is a third person. तो थर्ड पर्सन के रेफरेंस में क्या आएगा? ओ das sind. यहाँ पे अब हमें थर्ड पर्सन का रेफरेंस यूज करना है और उवा को मैंने ऐसा बोला कि फीमेल कंसिडर कर लो. सो अब कौन सा आंसर आएगा इसमें से देख लो. थर्ड पर्सन है, फीमेल है वो, और फ्राउ वगैरह कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं हम. या sehr gut, richtig. ईयर किंडर, ईयर मतलब ये छोटा वाला आया आएगा. हाँ, ईयर. ये हम ईयर में क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये वाला ईयर यूज करना है हमें. हर हर किंडर करके. इज इट क्लियर? अब ये अच्छे से पता चला, ईयर दोनों का करेक्ट आया आप लोगों का. सो प्लीज ट्राई टू डू फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ. जिंड दास डैश डैश कॉफर. अभी आप खुद से टाइम लेके कंप्लीट कर लो, देन विल रीड इट. फिर चेक करते हैं कि कुछ हो रहा है क्या, मतलब कुछ गड़बड़ आ रही है क्या उसमें. अगर बीच में कभी भी डाउट आता है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए डायरेक्टली. या डन. या ओके. अर्णव आपका हो गया? यस अर्णव. ओके. राहुल प्लीज रीड फर्स्ट सेंटेंस. Sind das deine Koffer, Frau Noll? Okay, so you have written deine oder dein? Deine. Warum deine? Beim Feminine, Frau Noll. Frau Noll feminine है, but what you are going to ask is it your bag, right? So हम लोग किस चीज के हिसाब से चेंज कर रहे हैं? जैसे यहाँ पे आउटो के हिसाब से ईयर ऑर्डर ईयर करना था.
किंडर के हिसाब से हमने दाइना किया था, सो हम लोग किसको पूछ रहे हैं उसके हिसाब से नहीं चेंज कर रहे, क्या पूछ रहे हैं इसके हिसाब से चेंज कर रहे हैं। जैसे कॉफर है, सो कॉफर इज सूटकेस, कॉफर का आर्टिकल है देयर कॉफर, दैट्स व्हाई जिंट दास दाइन कॉफर आएगा या तो ईयर कॉफर आएगा। क्लियर? फ्राउनॉल का यहाँ पे कुछ ये नहीं है, फ्राउनॉल का यूज सिर्फ हमें इसलिए इस चीज के लिए देखना है कि फ्राउनॉल मतलब हम लोग किसी को फ्राउ यूज कर रहे हैं, मतलब फॉर्मल वे में जा रहे हैं, तो इसलिए ये जो जी है ना, ये पर्सनल प्रोनाउन का हमें फायदेमंद है, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो ईयर है। नाउ वेदर वी आर गोइंग टू यूज ईयर और ईयर इज डिपेंडेंट ऑन किस चीज के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ पे है कॉफर, कॉफर के लिए आर्टिकल है देर, तो इसलिए हमें देर के हिसाब से हमारा ईयर ऑर्डर ईयर को कॉन्जुगेट ये करना है, चेंज करना है। तो कॉफर इज देर मास्कुलिन, इसके लिए ईयर आएगा। ठीक है, दाइन भी सही रहेगा, बट फ्राउ नॉल करके पूछा है तो क्यों हमें दाइन दाइन पे जाना है, फ्राउ करके यूज किया है तो ईयर या तो ईयर में जाएंगे, ईयर मिट कैपिटल आई का वाला ईयर, और फिर वहां पे जिंड दास ईयर, क्योंकि कॉफर इज सॉरी कॉफर इज देर कॉफर, इसलिए ईयर कॉफर आएगा। इज इट क्लियर? तो एक मिनट फिर से थोड़ा और दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो हमने देखा था ना, ये देखो, अब जैसे माइनर ब्लूमर, तो हम लोग चेंज किस हिसाब से कर रहे हैं, ब्लूमर आउटो आउटोज, राइट, यूआर, जैसे यहाँ पे चेंज किया है, सिमिलरली वी हैव टू चेंज देयर ऑल्सो। क्लियर और निश्ट क्लियर? Could you explain again? यस श्योर। देखो हम लोगों को क्वेश्चन कैसा करना है, जिंड दास इज इट यूर बैग, ओके, ऐसा हमें इंग्लिश में मीनिंग चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें चेंज कैसे, फ्राउ नॉल है, इसकी वजह से हमें पता चला है कि वी आर हम लोग किसी लेडी को ये बात पूछ रहे हैं, राइट? तो वहां पे पूछते वक्त और हमारे सामने वो खड़ी है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, हम लोग वहां पे यू यूज करेंगे, यू आर यूज करेंगे, राइट? फिर से एक मिनट। अब जैसे ये फर्स्ट वाला सेंटेंस था, देखो, इस्ट दस ईयर आउटो, तो हमने ईयर क्यों यूज किया यहाँ पे, क्योंकि आउटो था, अगर आउटोज होता तो ईयर हो जाता, प्लूरल होता, इसलिए देर आउटो है, इसलिए ईयर आउटो। अगर यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन में ऐसा करती ना, इस्ट दस ईयर आउटो फ्राउ नॉल, तो भी मेरा ईयर वैसा का वैसा ही रहता, वो चेंज नहीं होता। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि हम लोग किससे, मतलब हेर फ्राउ जो भी कुछ होगा, क्लाउस ऊ, किसी से कोई भी मतलब नहीं था पहले सेंटेंस में, क्योंकि वो यू के हिसाब से हम लोग कॉन्जुगेट कर रहे हैं उसको, सामने पर्सन खड़ा है। यहां तक समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, अब जैसे फर्स्ट सारे सेंटेंसेस का फर्स्ट देख लो, हेरमोन हमारे सामने खड़ा है, क्लाउस हमारे सामने खड़ा है, फ्राउ नॉल हमारे सामने है, इसलिए हम उनको यू करके एड्रेस कर रहे हैं, और वो यू के लिए हमें यूर यूज करना है। सो ईदर वी कैन यूज दाइन और ईयर, ओके, मतलब दाइन और दाइना, ईयर और ईयर, उसमें से जो भी कुछ होगा। तो अब जैसे हेर यूज किया है तो मिस्टर है, तो इसलिए हम लोग फॉर्मल वे में उसको ईयर कर रहे हैं, क्लाउस यूज किया था इनफॉर्मल वे में, हम उसको दाइन कर रहे हैं, एंड देन व्हाट वी आर कॉन्जुग, मतलब चेंज कैसे कर रहे हैं, ईयर ऑर्डर ईयर, दाइन ऑर्डर दाइनर, डिपेंडिंग ऑन किस चीज के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आउटो के लिए पूछ रहे थे, आउटो का आर्टिकल है देर, इसलिए ईयर आउटो आया। यहाँ पे किंडर है, प्लूरल है, इसलिए दाइना आया। अगर सिर्फ एक ही बच्चा होता तो किंड हो जाता, तो फिर दास किंड के हिसाब से यहाँ पे दाइन किंड हो जाता, इररिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे क्लाउस है, हेरमोन है, या कोई भी है, तो दाइन किंड हो जाता, क्योंकि हम किंडर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे भी वे सेंटेंस में भी कॉफर यूज कर रहे हैं हम लोग, कॉफर मतलब सूटकेस, तो वो कॉफर के लिए हमें यूज करना है अब जैसे यहाँ पे फ्राउ दिया है, हमें पता है कि फ्राउ इज मतलब फॉर्मल वे में हमें जाना है, तो फॉर्मल का यूआर करके हम लोग यहाँ पे ईयर कॉफर यूज कर सकते हैं। ईयर मैं चैट बॉक्स में लिख के बताती हूँ, ये वाला ईयर कॉफर, क्योंकि कॉफर देर कॉफर है। अगर कॉफर की जगह पे कोई और वर्ड होता जो फेमिनिन है, किंडर यूज होता, अगर वहां पे किंडर ये प्लूरल हो गया है, तो इसके लिए भी फिर ईयर हो जाता। अब आया समझ में? अब दूसरा Yes. यहां तक समझ आया ना? अब इसके बाद और एक बात बताती हूँ कि जो मैंने यहाँ पे कहा था कि ऊव को फीमेल कंसीडर करो एंड देन कॉन्जुगेट दिस,
तो यहाँ पे उव क्यों, हम क्योंकि उव इज अ थर्ड पर्सन, हम लोग उसके साथ बात नहीं कर रहे, हमारा यहाँ पे आई या यू वाला कॉन्वर्सेशन नहीं है, हर के बारे में हमें बोलना है, थर्ड पर्सन है, तो इसीलिए उव शी मतलब फीमेल कंसिडर करके फिर हम उसको हर बोल रहे हैं, इसीलिए हमने वहां पे अलग वाला ईयर यूज किया था। जो थर्ड सेंटेंस होगा ना, थर्ड और फोर्थ सेंटेंस, उसमें हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दीज पैराग्राफ्स, और जो फर्स्ट दो सेंटेंसेस है ना, उसमें हम आमने सामने बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ईयर आएगा, ईयर ऑर्डर डाइन। इज इट क्लियर? अर्णव आपको भी पता चल गया? राहुल आपको भी अब क्लियर हो गया पूरा? यस मैम। अर्णव, ओ अर्णव, okay, so now next sentence, Arnav please read next sentence. सेकंड वन, सेकेंड मतलब ये जिंड दास ईयर कॉफर ऐसा कर लिया हमने, तो अब फ्राउ नॉल विल आंसर दिस सेंटेंस, प्लीज रीड दिस वन। नाइन दास सिंड निस्ट माइन कॉफर। या sehr good रिष्टिश, तो अब यहाँ पे फ्राउ नॉल इज आंसरिंग नो दैट इज नॉट माई सूटकेस, तो इसलिए माई का माइन हो गया, और माइनर नहीं माइन यूज करेंगे क्योंकि कॉफर इज देयर कॉफर। वेरी गुड, नेक्स्ट सेंटेंस रीड कर लो और आगे का आंसर बता दो राहुल। Das sind die Koffer von Frau Soprana. Oh, das sind ihre। हाँ, अब क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में हो गया, दस दिन डिस्ट, ओके। कॉफर का तो देर ही है, मास्कुलिन है जेंडर फॉर कॉफर, यहाँ पे शायद प्लूरल, एक मिनट। मैम फिर यहाँ पे तो हाँ एक मिनट, प्लूरल फॉर कॉफर देखते हैं फिर वो, अगर ओके, सो कॉफर ये वर्ड दोनों तरफ मतलब देर कॉफर, ये उसका ये हो जाएगा, देर कॉफर इज सिंगुलर और दी कॉफर ही रहता है। ओके, प्लूरल फॉर्म में भी दी कॉफर ही रहता है, तो इसके लिए अब जैसे यहाँ पे देखो, अब इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेंटेंस में मुझसे गलती हुई कि जिंड दास है, जिंड इज फॉर प्लूरल, राइट, अगर एक होता तो इष्ट दास आ जाता, तो जिंड दास है करके ये समझ लेना चाहिए कि यस कॉफर मैम। प्लूरल के फॉर्म में यूज किया है, तो इसलिए ईयर आएगा, फिर माइन आएगा नेक्स्ट में, क्योंकि कॉफर यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है। ओके, अब या ओके, यहाँ पे समझ आया गलती क्या हुई थी मेरे, सॉरी मैं शायद मीटिंग से लेफ्ट हो गई थी, सो मेरे मैसेजेस नहीं है अभी। मैम हाँ, जिंड सो फर्स्ट जिंड मतलब, प्लूरल है। हाँ जिंड ये हम लोग कॉन्जुगेटेड फॉर्म इसलिए यूज करते हैं जब हमारा कोई भी जो चीज जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं वो अगर प्लूरल है तो ही हम जिंड यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आ जाना चाहिए था जिंड दास ईयर कॉफर, क्योंकि ईयर यहाँ पे आएगा क्योंकि प्लूरल है, देर कॉफर दी कॉफर ही रहता है। ओके, फिर फ्राउनॉल, देन नाइन दास इज दास जिंड निस्ट, अब माइनर आएगा, माइनर आएगा क्योंकि प्लूरल है, देन दास जिंड दी कॉफर, अब यहाँ पे ये ही हिंट है, ये दोनों दो हिंट्स हो जाएंगी इस सेंटेंस में, कि एक तो जिंड से पूछा है और दूसरा थर्ड सेंटेंस में दी कॉफर यूज हुआ है। तो अब आंसर बताओ नेक्स्ट क्या आएगा, ओ दास जिंड, यहाँ पे कैसे यूज करोगे ओ दास जिंड? मैम ईयर ही रहेगा। करेक्ट, ईयर, बट अब आई स्मॉल रहेगा। यस मैम। हाँ, क्योंकि हर के लिए फ्राउ सोप्राना इज अ थर्ड पर्सन, तो इसलिए हम लोग हर सूटकेसेस ऐसा कर रहे हैं अब यहाँ पे।
ओके तो ये जो अभी मैंने भी गलती की वो याद रखो आगे से आप लोग भी करते वक्त, जब ऐसा पैराग्राफ आएगा ना, और एग्जाम में आ सकता है ऐसा पैराग्राफ और उसमें ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। तो अब अगर हम लोग ईयर लिखते ना यहाँ पे, तो ग्रामेटिकली और बाकी के हिसाब से हम लोगों ने सही सोचा था, बट द थिंग वाज कि दी कॉफर है। ये तब भी शायद पता चल ही जाएगा आप लोगों को अगर सॉल्व करने बैठोगे तो, कि दी कॉफर नीचे आ रहा है, देन वाई आर वी यूजिंग देयर हियर ऊपर वाले इसमें। ठीक है, आ गया समझ में? पूरा क्लियर हो गया ये सेंटेंस, ये वाला पैराग्राफ? मैम फर्स्ट का आंसर हाँ क्या बोलो। था वो, सी का फर्स्ट? फर्स्ट, हाँ फर्स्ट विल बी नाउ हियर ईयर। और फिर अगर आपने वहां पे दाइना लिखा होता ना, आपने सोचा अलग था, वो फ्राउ नॉल के हिसाब से सोचा था, बट देन अगेन दाइना वुड हैव बीन करेक्ट, क्योंकि दाइना कॉफर ये दाइना वाला हो जाता प्लूरल का दाइना। बट ट्राई करो कि जब भी हेयर या फ्राउ यूज करते हैं ना, तो दाइना को जाने के ऐसे अच्छा है कि ईयर ही यूज कर लो, कैपिटल आई वाला ईयर, फॉर्मल वाला यूर। ओके, तो फर्स्ट का आंसर होगा यहाँ पे, सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर विल बी ईयर। सेकेंड मोस्ट करेक्ट आंसर वुड हैव बीन दाइनर, बट वो दाइनर फ्राउनोल है इसलिए दाइना नहीं होता, कॉफर प्लूरल आ रहा है इसलिए दाइना हो जाता। ओके, फिर यस। नाउ प्लीज डू दैट दिस सेम फॉर डे। यस, डन। Rahul, you have raised a hand, so do you have any query? Okay, done. Very good. Arnav, please read first sentence. Du ist das deine Tasche? Correct. Have you read deine? No, Then, dein. warum dein? Tasche का आर्टिकल क्या है? Der, die oder das? Das Nein, das ist die Tasche. Feminin है. Okay, so du ist das deine Tasche. ओके, दाइना आएगा यहाँ पे। अब ये भी सब छोड़ दो कि हमें अभी अगर जैसे सबके आर्टिकल पता होना जरूरी नहीं है, अगर नहीं याद आ रहा है तो यू कैन डायरेक्टली रेफर टू द थर्ड सेंटेंस। जो हमने यहाँ पे गलती की उसको हम यहाँ पे सुधार सकते हैं कि डायरेक्टली रेफर टू थर्ड सेंटेंस, दास इस्ट दी टाशा फॉन क्लाउडिया। तो यहाँ पे उन्होंने आंसर कर दिया है कि हमें टाशा का दी वाला फॉर्म यूज करना है। सो दी इज फेमिनिन फॉर्म, तो यहाँ पे दू इस्ट दास दाइना टाशा आ जाएगा। सो दाइना आएगा यहाँ पे। Okay, next, Rahul, please read next sentence. 9, das ist nicht meine Tasche. Very good. अभी एंड वाला आंसर अर्णव, लास्ट टू सेंटेंसेस।
Das ist die Tasche von Claudia. Oh, हाँ das ist ihr Tasche. हाँ, अब यहाँ पे भी सेम जैसे दाइन हुआ था, यहाँ पे भी ईयर हो जाएगा, क्योंकि क्लाउडिया फीमेल करके हम लोग यूज करेंगे तो ईयर हो जाएगा। अगर मैं अभी ऐसा कहती हूँ कि क्लाउडिया नाम फीमेल का ही नाम है, क्लाउडिया की जगह पे वहां क्लाउस इमेजिन कर लो कि एक मेल का कैंडिडेट का मैं नाम दे रही हूँ, दास इज द टाशा फॉन क्लाउस, देन हाउ विल इट चेंज? राहुल प्लीज आंसर। दास इज द टाशा फॉन क्लाउस ऐसा मैंने अभी लिखा है, देन what will be your answer? Oh, das ist dash dash tasha. क्वेश्चन समझ में आया? बोथ ऑफ नो। यू? अच्छा, ओके, यस, ओके अर्णव प्लीज टेल। करेक्ट। तो अब जैसे राहुल मैंने सवाल ये पूछा था कि दास इस्ट दी टाशा फॉन क्लाउडिया लिखा है ना यहाँ पे, सो क्लाउडिया इज अ फीमेल, मतलब शी करके हम लोग क्लाउडिया को रेफर कर रहे हैं। दास इस्ट दी टाशा फॉन, अब यहाँ पे क्लाउडिया की जगह पे मैं क्लाउस डाल देती हूँ और मैं कह रही हूँ कि क्लाउस इज अ मेल कैंडिडेट, तो मतलब ही है। देन हियर यहाँ पे जो आपका आंसर में आएगा ना वो ऐसे चेंज हो जाएगा, ओ दास इज हिज बैग। तो यहाँ पे हिज के लिए हम लोग जाइन यूज करते हैं। ये वाला टेबल फिर से दिखाती हूँ, ये को एर का जो हिज मतलब एर इज ही, उसका जो नेक्स्ट हिज होता है दैट इज जाइन, और क्योंकि टाशा इज फेमिनिन जाइनर टाशा आ जाएगा। और अगर वो क्लाउडिया वहां पे जो नाम है वैसा का वैसा ही रखता है तो वो यहाँ का शी, उसका हर विल बी ईयर, एंड टाशा इज फेमिनिन दैट्स व्हाई इट विल बी ईयर। इसलिए यहाँ पे अब जैसे ये सेंटेंस में करेक्ट आंसर इज ओ दास इज ईयर टाशा। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ गया कैसा सवाल था? मैम सो टाशा देखना है और क्लाउडिया नहीं देखना, मतलब क्लाउस या क्लाउडिया जो नेम रहेगा उन्हें देखना। हाँ, अब देखो कैसा है, जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग आमने सामने बात कर रहे हैं, तो मेरे सामने तुम खड़े हो, देन आई विल रेफर यू एज यू, राइट, नॉट एज राहुल। अगर सिर्फ दो इंसान आमने सामने खड़े हैं देन मैं आपका नाम लेके बात नहीं करूंगी वहां पे, यस। राइट, आई रेफर यू एज यू ऐसा करके। तो इसीलिए अगर मुझे आपसे पूछना है कि इज इट यूर बैग, देन आई विल आस्क इज दस दाइन टाशा दाइनर टाशा। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे यूर यूज करना ये फिक्स ही है, राइट, इंग्लिश वाला यूर जो जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे दाइन में। अब वेदर आई हैव टू यूज दाइन और दाइनर डिपेंड ऑन मेरा टाशा का जो आर्टिकल रहेगा वो, तो इसलिए हमने दाइनर टाशा कर दिया यूर बैग करके। नाउ अब यू आर आंसरिंग मी नो दैट इज नॉट माई बैग, दैट इज अर्णव्स बैग। सो अर्णव इज अ थर्ड पर्सन, राइट, जो वहां पे खड़ा नहीं है। देन हाउ विल आई आंसर इट? ओह, सो इट इज हिज बैग। तो अब यहाँ पे हिज के लिए हमें जाइन यूज करना है, जाइन ये वर्ड। नाउ टाशा के हिसाब से आइदर आई विल यूज जाइन और आई विल यूज जाइनर। अब हो गया क्लियर? ये पैराग्राफ के रेफरेंस में है। हाँ, अगर दो इंसान सामने खड़े हैं देन यू हैव टू यूज यूर, अगर तीसरे पर्सन के बारे में बोल रहे हो देन यू हैव टू यूज हर और जो भी कुछ होगा वो, एंड देन योर सेंटेंस विल चेंज ऑलवेज, योर ईयर और ईयर विल चेंज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द थिंग अबाउट विच यू आर टॉकिंग, टाशा, आउटो, कॉफर, किंडर, किंड, बेबी, ब्लूम, ब्लूमेन, जो भी कुछ होगा। इज इट क्लियर या अभी भी डाउट है? क्लियर मैम। हाँ, अब एक काम करो, खुद से ये ई और एफ जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ई एंड एफ खुद से घर पे एज अ होमवर्क ट्राई करो। अगर और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रीड करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं और फिर हम ऐसे रैंडमली सेंटेंसेस उठा के उनका प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे दीज सेंटेंसेस आर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये कुछ पैराग्राफ है जिनका एक दूसरे के साथ लिंक है, रैंडम सेंटेंसेस उठा के भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फॉर नाउ danke und tschüss। चूज। स्क्रीनशॉट हो गया?